if you want to do a road trip from Mumbai to Katra, you will be getting all the information in this particular video. और ये देखो कैसे देख रहा है मेरे को, इसके सामने भाग गया, इसके सामने पहली बार व्लॉगिंग कर रहा, भाग रहा है, देखो भाग। और आप देख ही रहे हो ये सेटअप। अब जब मैं ये वाले गद्दे दोनों खोल दूंगा और हम लोग 3 जन सो सकेंगे, तो तब भी मैं दिखाऊंगा। 6 होता 6 की गया 6 4 की करा जाए 4 IPL में। हाँ 4 મણી જગ્યાએ ઘૂસી ને પહોંચે वीडियो हाय जा टोटल 875 किलोमीटर्स। और कल एक ही दिन में हम लोग ने आधा राजस्थान, पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब पार कर लिया। Welcome back to our channel Psycho Indian Travelers, and if you are new, you probably new here because we were not uploading videos for last 2 years, and probably that's why we have lost all the subscribers connection. But now we have decided to go in a flow and start uploading the videos. In fact, our travel was stopped because of many ups and downs that we faced during last 2 years. We have got many messages on Instagram and YouTube comment section as well. People were waiting for the videos, but we could not upload it somehow. We are thinking of going in a flow, and we will try to at least upload 2 videos a week. Meanwhile, in last 2 years, we have got one super gift from the God. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi to everyone. He's thinking. Yeah. So we had some mannat, and that's why we want to go to Vaishno Devi first, and then from there we will decide what route we would be taking. Like we can go to Kashmir, I mean further Kashmir and deeper part of Kashmir like Warwan, Gurez or something, or we can go to Himachal depending on the situation. It's raining over there, it's snowfall over there right now. On 7th of May there was heavy snowfall, so we are actually deciding to skip the Kashmir part. We don't want to travel in snow with a 1-year-old kid, so let's see. Right now we have reached Manor. We started our drive from our home at around 7 AM in the morning. It took us 3 hours to reach over here at Manor. We have stopped in parking lot of Jalaram Kathiawadi restaurant. It was amazing to have breakfast over here. But now it has been 12 already. Our today's agenda is to reach Udaipur. I don't know how we would be making there today itself. I'm not going to cut the video in Udaipur or maybe at some other place wherever we will be stopping. However, I'm going to continue this video until Katra. If you want to do a road trip from Mumbai to Katra, you'll be getting all the information in this particular video. And let's see. Let's just start the drive. It's still 10 hours of drive left, and we don't want to get more delay. From Mumbai to Manor is pretty simple. You have to take Fountain Road and just drive straight. So road is pretty good in conditions, and let's just start the drive. We have just passed the Surat, and it is like 48-49 degrees Celsius outside. So I think, yeah, feels like, of course, because the real temperature is around 40 degree and feels like 48 degree, 39 degree plus 9 degree to 48 degrees. And I think that's the reason there are no many people are on the road right now. So we are getting the empty road. I mean, it is first time for me to see this Ahmedabad highway this much empty. I'm just pushing the throttle to 120, 140, 100 wherever possible. And he's also enjoying. He slept for 2 hours. I mean, just woke up and we took a pit stop for fuel break, and we got some munchies from the Balaji factory outlet. However, Babu is enjoying a lot. I think I cannot see him all the time. Whenever he comes at such a place where I can see him in back mirror, I just call him and he also gives me that good smile. However, right now he's not visible. I don't know what he's doing. बाबू खोटे खोटे खा
वरी खेला देखो right now it's 2:15. Udaipur is still 8 hours away, so we will probably reach there by 10 o'clock. And she is not allowing me to drive that much because we will have to take another 2 pit stop for him. I mean, it takes around 30 minutes to feed him. Every time, if we will take pit stop around 1 hour, then we will probably reach Udaipur by 12 midnight. And tomorrow we have to start drive at early morning and plan. Our agenda is to reach Chandigarh, which is another 12 hours drive. So adding 3 hours to that food for his food, that will take around 15 hours. So let's see how far we can reach tonight. ए क्या बोलते हैं, जयपुर तक खींच लूं क्या? तो कल सीधा कतरा? क्यों? खींच लेते हैं ना, तू बोले तो चंडीगढ़ खींच लो। अरे क्या होता है, एक रेड बुल मारूंगा हो जाएगा, खींच लूंगा चंडीगढ़ तक। तो बब्बू तो सो ही रहा है ना, उसके लिए तो गद्दा बनाइए ही पीछे, उसमें क्या है। पानी पी बब्बू, पानी पी कैमरा में पानी पी। फेंक मत रे, बाक्का माले तेरे को फेंकते जा रहा है। फेंकने का नहीं, देखो कैसा फेंकेगा, देखो फेंक। हाँ और नेक्स्ट बबू, नेक्स्ट अनेकड़ो और एक। तो गाइस हम लोग ने अभी यहाँ पे लंच ब्रेक लिया है। दिस इज खोड़ियार काठियावाड़ी ढाबा। सो रिव्यूज़ तो अच्छे थे, मैप पे चेक किया, पर बाजू में गिरिराज काठियावाड़ी ढाबा है, उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो और पार्किंग भी वहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, तो सोच रहे बस कि डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाए, वहाँ जाए कि यहाँ जाए। बाय द वे इट्स फ्लेमिंग हॉट राइट नाउ ओवर हियर। इट्स लाइक 46-47 डिग्री सेल्सियस एंड बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और ये देखो कैसे देख रहा है मेरे को, इसके सामने भाग गया, इसके सामने पहली बार व्लॉगिंग करा, भाग रहे, देखो भाग रहे। ये पकड़, ये देखो कैसे भाग रहा है। दिखा इधर मोड़ी के चो, हाय बोलो, हाय चो कैमरे में हाय बोलो सबको। ये कंफ्यूज हो गया, इसके साथ कभी व्लॉगिंग नहीं की ना, ये 1 साल का हो गया वैसे बाय द वे। 26 ऑफ अप्रैल को एंड टुडे इट्स 13th मई, तो 1 year 20 days। और एंजॉय तो बहुत कर रहा है, लेकिन खाने में बहुत नाटक करता है। अभी इसको भूख लगी है, रोने लगा, इसलिए हम लोग ने अर्जेंट में पेट ब्रेक लिया। अदरवाइज़ हमारा प्लान था वडोदरा तक खींचने का गाड़ी, और वडोदरा में ही कहीं पे लेंगे, लेकिन पता नहीं इसने रोना चालू कर दिया और शायद इसको भूख ही लगा था। अभी तो फिलहाल खेल रहा है, पता नहीं, देखते। तो गाइस अभी हम लोग ने सोचा कि गिरिराज में जाते, क्योंकि पार्किंग यहाँ पे फुल थी। आप देखिए कितने तरह के सैलड्स और 4 तरह के अचार दिए हैं। हमने मिक्स वेज थाली ले ली है, मतलब पंजाबी थाली ले ली है, जिसमें रोटी हम लोग ने तवा चपाती कर दी। अब ये है मिक्स वेज, ये है पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई, राइस, पापड़, छाछ सब इंक्लूडेड है। 200 रुपीज़। एक बाइट मैंने ले लिया है, बहुत सही था। मैंने लिया था मिक्स वेज के साथ। अब एक ट्राई करते हैं अपन पंजाबी के साथ, मतलब पनीर वाली सब्जी के साथ, देखते हैं कैसी है। बाबू हाय चो। सब्जी में दोनों अच्छी है, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा तो यही अच्छी है, मज़ा आया। ये सब्जी बहुत सही है, बहुत सही है। फिलहाल ये ख़त्म करते हैं और फटाफट निकलते हैं यहाँ से। इसका भी खाना बचा है, तो ये भी खाना खा लेगा फटाफट अभी, और फिलहाल ख़त्म करके निकलते हैं। ये बाबू
कल रात को अच्छा खासा लेट हो गया था। लेट तो नहीं हुआ था, हम लोग 10 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। अभी हम लोग हाईवे पे अहमदाबाद उदयपुर हाईवे। हम लोग ने वी टुक हलोल वाला रोड फ्रॉम वडोदरा, लेकिन आफ्टर ऑल इसने यहीं पे कनेक्ट किया हमको। मुझे लगा था डायरेक्ट उदयपुर जाएगा, एक्चुअली नहीं जाता है। 100 किलोमीटर जस्ट बिफोर ये इसी रोड को कनेक्ट करता है, अहमदाबाद वडोदरा हाईवे को। और कल रात को फिर लेट भी हो गया था और ये लोग दोनों थक भी गए थे। मुझे तो खींचनी थी गाड़ी उदयपुर तक, क्योंकि आज हमको फिर चंडीगढ़ जाना था। 1 घंटा है यहाँ से उदयपुर ऑलमोस्ट। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे होटल नीलकंठ में। ठीक है, काम चला होटल है, इतनी भी कुछ ये नहीं है। और फूड भी ठीक ठाक ही था। 10 बजे यहाँ पे पहुँचे, फिर उसको खाना खिलाया, उसको रिलैक्स किया। वो खेल रहा था, उसके बाद हमने डिनर कर लिया। खाना ठीक था, इतना भी कुछ ऐसा नहीं था कि खा ले करके। अभी सुबह के बजे 10, एक्चुअली हमको निकलना था 8 बजे। आज भी लेट हो गया क्योंकि मैंने सोचा छोड़ो अभी नरनौली जाना है, तो टाइम पास करते हैं थोड़ा, यहीं पे रिलैक्स करते हैं। और फिलहाल ये लोग मस्त खेल रहे हैं यहाँ पे। अभी ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं दोनों भी। हाय चो बबू, हाय हाय बोल, हाय बोल, हाय 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 करो, हाय करो, हाय हाय। हाँ, आउटसाइड टेम्परेचर इज लाइक 48-49 डिग्री इन आफ्टरनून। फिलहाल स्वेट हो रहा है थोड़ा क्योंकि 10 बजे है, लेकिन टेम्परेचर इज अराउंड 42 डिग्रीज। और आप देख ही रहे हो ये सेटअप। अब जब मैं ये वाले गद्दे दोनों खोल दूंगा और हम लोग 3 जन सो सकेंगे, तब भी मैं दिखाऊंगा, एक अलग वीडियो में आएगा वो। फिलहाल ये सेटअप अमेजिंग है, मतलब ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं। अभी क्या होगा पता है, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ और इसको भी सोना है, तो ये वाला ऊपर वाला गद्दा है ना, यहाँ पे पलटी आ जाएगा। ये वाला जो एक बास्केट है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बबू को वहाँ पे लंबा नहीं होना है। और यहाँ पे ये आराम से सो सकती है और मैं एकदम आराम से क्रूज कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं, वो चांस कल तो हम लोग ने नहीं लिया, कल ही निकले थे घर से। यहाँ से नरनौल है कुछ 10 आवर्स की ड्राइव। अभी बजे 10:30 सुबह के। आई सेड गाड़ी की फील ही अलग है यार, मतलब कैंपिंग करना हो, ओवरलैंडिंग करना हो, ऐसी बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत मज़ा आता है। और मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा कोई वीडियो जिसमें कोई अपने 1 साल के बच्चे के साथ ओवरलैंडिंग करने निकला हो, कैंपिंग करने निकला हो इन फार नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो पता नहीं, अभी होंगे लोग, तो होंगे यार, हम लोग नहीं है ऐसा नहीं है, लोग तो बहुत होंगे। किसी ने वीडियो अपलोड नहीं किए हैं या मेरी नज़र नहीं पड़ी है। फिलहाल ये पूरा एंजॉय कर रहा है, अब यहाँ से एंजॉय कर रहा है। देखिए अब ये पूरा इसका प्लेग्राउंड हो गया आज के लिए। यहाँ से निकलते हैं फटाफट और पहुँचते हैं नरनौल। एक्चुअली 3 स्टॉप लेने पड़ेंगे हम लोग को 1-1 आवर के, क्योंकि ये जो बच्चा है ना, ये बड़ा शैतान है। ये खाने में बहुत टाइम लगाता है, खाने में बहुत टाइम लगाता है। तो इसके लिए 1 घंटा तो मिनिमम लगता है इसको, जब भी खाना खिलाना हो। आज सुबह का खाना खिला दिया और 3 मील होने इसके, 3 घंटे उसमें गए। बाकी ये पॉटी वॉटी करेगा तो वापस रुकना ही पड़ेगा, और उसमें 20-25 मिनट चले जाते हैं। इसीलिए हम लोग को कल लेट हो गया। हमारे टोटल स्टॉप थे अराउंड 6 आवर्स के, अदरवाइज कल हम उदयपुर के उसको भी क्रॉस कर जाते। उदयपुर से जयपुर, मतलब हम लोग तो उदयपुर से पहले रुक गए थे। जो हम लोग ने ड्राइव स्टार्ट करी है और जो ब्यूटीफुल रोड है, आई मीन सीरियसली ऐसे रोड अगर मेरे हाँ, एक्चुअली he is enjoying more than us. He slept for probably 2 hours in between. He usually sleep for 5 hours a day. I mean until evening. Right now it's 6:30, so by this time he usually sleep for 4 hours or maybe 5 hours at home. But यहाँ पे ये सिर्फ 2 घंटा सोए और एनर्जी देखो उसकी, खतरनाक है। I mean मजा आ रहा है एकदम, मतलब ये रोड ऐसा मस्त है ना, मैं क्या बोलूँ। हम लोग चले थे कुछ 11:45 बजे सुबह, 10:45 को। 1.5 hour में रीच उदयपुर। वहाँ पे जाके सोचा छोड़ो ब्रेक ले लेते, नटराज थाली में जाएंगे, नटराज की थाली खाएंगे। ठीक है, मतलब मैंने इससे भी अच्छी बहुत सारी थालियाँ खाई है, तो मुझे इतना अपील नहीं किया, लेकिन थाली अच्छी थी। पर मैंने इससे अच्छी खाई है, तो जो बेंचमार्क है जो मेरे माइंड में, वो कोई और है। तो ठीक है, उसके भी वीडियो डालूंगा मैं, मतलब दूसरी जो थाली खाई है उसके मैं फोटो डाल देता हूँ यहाँ पे। जो हमने खाई थी चामुंडा ढाबे पे, शाम ख्याली, जो आता है कच्छ के रूट पे। सो माय नेटिव प्लेस इज कच्छ, एंड व्हेन वी वर गोइंग देयर बाय कार, वी टुक अ स्टॉप ओवर देयर फॉर डिनर एक्चुअली। और उसका थाली का फोटो देखो आप, दैट वाज एक्चुअली बेटर थाली देन नटराज थाली, और कॉस्ट था ओनली 140 दैट टाइम।
और अभी की बात है, 6 महीना पहले की बात है, 140 रुपए की कॉस्ट थी, नटराज की थी 300 रुपए की कॉस्ट। ठीक है, सिटी के प्राइस में भी डिफरेंस आता है, अंडरस्टैंड, लेकिन इतना अपील मुझे नहीं किया पर्सनली। ठीक है, वहाँ पे हम लोग ने 3 घंटे स्पेंड कर दिए, 3 घंटे फुल एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग ने फिर से ड्राइव स्टार्ट करी, ये दोनों पीछे ऐसे ही सो गए थे, ये भी सो गई थी, मैंने कुछ शूट नहीं किया तभी, अभी तो दोनों एंजॉय कर रहे हैं, फुल धमाल कर रहे हैं। और ए बाबू, यू आर कमिंग इन दिस वीडियो। हाय जा, हाय जा, हाय बोल, हाय बोल। ए yeah, he has full energy. I mean, he just slept for 2 hours today. Yesterday, it's raining out there. Seriously? Huh, see there? Boy, Wow. what kind of I weather can has see the become? clouds above. It's very beautiful. Yeah, see, the sunset over there looks very beautiful actually. We probably enjoyed the whole day. We took a 3 hours break in Udaipur just for a lunch of us and Shashwat. Then we started our drive at around 3 p.m. Right now is 6:39, and in 1 hour, I mean, within 1 hour, we are about to reach Jaipur. So it's 400 kilometer, which took us only 4.5 hours, along with pit stop. I mean, 2 pit stop that we took for tea break and a washroom break of 15 minutes. That means overall we took only 4 hours to cover this 400 kilometer of distance. सीरियसली गाइस, सीरियसली मक्खन रोड है, मक्खन, मजा आ गया। ऐसे रोड अगर मेरे घर के वहाँ मतलब महाराष्ट्र में होते तो बात ही कुछ और थी यार। मुंबई गोवा हाईवे हो गया या कोई और, मक्खन रोड है, मक्खन, मतलब इतना मजा आ रहा है ना इस रोड पे ड्राइव करने के। ये दोनों तो फुल धमाल कर रहे हैं यार। ये ब्लॉग पे तो ध्यान दो तुम लोग। राइट नाउ ऑल्सो while talking I am cruising at 120 kilometers an hour. So and look at them. He is playing there. She is sleeping over there without any, jerks and anything. Muska highway, Muska. Poiche, ona gusse ne poiche. Ona gusse ne poiche. પણ સીધું ઊભું થઈને નાચો નથી. Me. Nikki. કોરેજી મસ્તી. મણી જગ્યાએ ઘૂસી ને પહોંચે. ખોટે ખોટે ખાલ, ખોટે ખોટે ખાલ. ના દિકી મસ્તુ ના બેટા. मैं कल रात को जयपुर पहुंचते पहुंचते 8 बजे थे कुछ, जब मैंने ब्लॉग किया था ना। उसके बाद जो घमासान बारिश हुई है और जो घमासान लाइटनिंग थी, मतलब क्या बोलूं मैं, खतरनाक से भी खतरनाक थी। तो और बहुत ट्रैफिक, लाइक मुझे जयपुर सिटी तक, मतलब सिटी भी नहीं, वो एक बाईपास है, वहां तक पहुंचते पहुंचते 10 साढ़े 10 बज गए, इतनी ट्रैफिक थी। फिर हम लोग ने सोचा जयपुर में ही रूम ले लेते हैं, और हम लोग ने जयपुर में ही रूम ले लिया। हम लोग होटल में कुछ 10:30 बजे पहुंचे। तो IBBO से 1000 रुपए में अच्छी होटल मिल गई थी, अर्को प्लाजा, काम चला होटल, लाइक अच्छी होटल थी। प्लान था हमारा कल नरनौल पहुंचने का, बट नरनौल तो पहुंच नहीं पाए। ऐसे भी नरनौल अगर हम लोग पहुंचने था तो 10:30 बजे का टाइम दिखा रहा था गूगल मैप में, लेकिन पता नहीं अचानक से इतनी बारिश आ गई, अचानक से इतनी ट्रैफिक लग गई, 10 तो जयपुर में ही बच गए, और बाद में नरनौल 2 बजे बता रहा था। मतलब बाद में जयपुर से नरनौल के बीच में भी बहुत ट्रैफिक थी। इसलिए हम लोग ने फिर सोचा कि इट्स वाइज चॉइस टू, आई मीन इट्स वाइज डिसीजन टू स्टे इन जयपुर ओनली। जयपुर रह गए, और सोचा सुबह को 6 बजे उठ जाएंगे और 6:30 7 बजे तक निकल जाएंगे, और आज कल का जो डिस्टेंस था वो आज कवर कर लेंगे। लेकिन थोड़ा डिले हो गया, 7:30 बजे निकले हम लोग मॉर्निंग में। मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया कल, क्योंकि ये भी थक गया था, इसको भी फीड करना था और खाना खिलाना था, वो सब किया उसका। फिर हम लोग ने खाना खाया और हम लोग थक गए थे, सो गए सीधा। अभी आज मैंने भी लेट व्लॉग चालू किया। आज सुबह को एक्चुअली व्लॉग स्टार्ट करना था, लेकिन ये सोया था। हम लोग ने उसको यूं उठा के गाड़ी में रख दिया और सीधा निकल गए।
अभी हम लोग नरनौल से बस 20 किलोमीटर पहले है। अभी इसने पॉटी वॉटी किया था तो वो साफ करने के लिए रुके थे और नींद में ही किया था, तो उसकी नींद तो एनीवेज खुल गई थी, तो मैंने सोचा स्टार्ट कर दूं व्लॉग करना। ये देख, नया नया गाड़ी को ठोका। ये नया गाड़ी है, शोरूम से निकला है अभी निकला है शोरूम से। हम लोग ने नरनौल में ब्रेक लिया है। ये है शांति ढाबा कुछ तो। और नरनौल मुझे लगा था थोड़ा बड़ा टाउन होगा, सिटी टाइप होगा, लेकिन बहुत छोटा सा कस्बा है। टाउन तो है लेकिन बहुत छोटा है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो अच्छा हुआ हम लोग ने कल रात को नरनौल का प्लान नहीं किया। यहाँ पे कोई होटल्स कोई अच्छी अवेलेबल नहीं है। अच्छा हुआ जयपुर में ही रुक गए। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो कि बोलते हैं सब लोग। फिलहाल हम लोग यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, हैवी ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर सीधा देखेंगे आगे जाके कहाँ खाना खाना है। और ये भी खा रहा है यहाँ पे खाना। ये मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते, इनका एक प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों का। तो अब यहाँ से सिर्फ 2-4 किलोमीटर में ही ट्रांस हरियाणा हाईवे चालू हो जाएगा। बबू हाईकर मणि के हाईकर मड़े नेरिये था, मड़े हाई नेरिये था। 6 होता 6 की गया 6 4 की करा जाए 4 आईपीएल में। हाँ 4 आउट की थी आईपीएल में। आउट शाश्वत सो ये हमारे दही पराठे बहुत सही फूड है। अगर ऑथेंटिक टेस्ट लेना हो तो ढाबे पे जाके खाना, कोई भी स्टेट में। अदरवाइज ये देखो, खिला मम्मी को खिला हाँ मम्मी को खिलाते हैं। तो वही है। तो अगर ऑथेंटिक टेस्ट लेना हो तो ढाबे पे जाना, अदरवाइज तो रेस्टोरेंट में जाके वही पिज़्ज़ा, चाइनीज़ या प्योर पंजाबी फूड मिलता है, उसमें मज़ा नहीं आता। ये जो फूड है उसमें सोल फूड बोलते हैं इसको। बहुत मज़ा आता है, बहुत सेटिस्फाइंग टेस्ट होता है और बहुत क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है। तो गाइस बस ये अभी एक्सप्रेस वे एंड होने वाला है और देखते हैं अब कितना टोल कटता है। एक्चुअली एक्सप्रेस वे पे ऐसा सिस्टम है कि आप जब एंटर करते हो तब आपका टोल नहीं कटता है, तब सिर्फ एंट्री होती है फास्टैग पे। और आप जहाँ भी एग्जिट करोगे, देयर आर मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, तो जब जहाँ भी एग्जिट करोगे वहाँ पे आपका टोल कटेगा। तो अब देखते हैं कितना एक्चुअल में टोल है। मैंने स्टार्ट किया था एक्सप्रेस वे जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ही, तो यहाँ पे एक्सप्रेस वे एंड हो रहा है और इतने सारे टोल है। तो अब देखते हैं अपना टोल कितना कटता है। एक्सप्रेस वे उसके बाद भी एक्सप्रेस में तो 10 किलोमीटर तक चलेगा, लेकिन टोल ये लोग अभी यहाँ से ही काट लेंगे। दिस इज़ फाइनल टोल। अब सीधा ये अम्बाला के पहले खुलेगा। तो ट्रांस हरियाणा हाईवे जब ख़त्म होता है तब अम्बाला के लिए जाना पड़ता है, लाइक 30-40 किलोमीटर्स। उसके बाद अम्बाला सिटी में नहीं घुसना, उससे पहले एक लेफ्ट पे हम लोग सीधा हाईवे ले लिया, अम्बाला लुधियाना हाईवे। तो अम्बाला को बाईपास कर दिया। फिलहाल हम लोग हैं अम्बाला लुधियाना हाईवे पे और ये हाईवे भी बहुत सही चल रहा है। लाइक आई एम कंटिन्यूसली क्रूजिंग एट 100 किलोमीटर्स एन आवर। सो बहुत ज़बरदस्त मस्का रोड मस्का। अभी पिट स्टॉप लेंगे, मतलब एक लंच ब्रेक लेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट किया था नरनौल में, तो शाश्वत भी खाना खा लेगा और हमारा भी लंच हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ, अगर हम लोग एक भी ब्रेक नहीं लेते तो भी बता रहे हैं कि हम लोग 10:30 के आसपास कुछ कतरा पहुँचेंगे। अब पता नहीं, देखते हैं लंच के बाद कितने बजे पहुँचते हैं, क्योंकि कल हम लोग को ये करनी है यात्रा और जाना है माता रानी के दर्शन पे। और ये देखो क्या मजा कर रहे हैं पीछे ये लोग, और मैं कंटिन्यूअस 2 दिन से ड्राइव कर रहा हूँ। ये लोग सोते सोते मस्त मजा ले रहे। अरे यार मुझे भी खेलना था यार पीछे, ऐसा नहीं चलता है, नॉट फेयर। तो अरे ठीक है, बट डोंट मेक द कार डर्टी और we have a long trip ahead. I mean, every day I clean the bed.
Yeah, you clean the bed, but we have a long trip ahead, and now I don't want to mess over this entire setup. बहुत बहुत मस्ती है बाबा इसको। ये दिखता पतला है, छोटा है, शांत है, लेकिन जो मस्ती है ना वो मुझे भी पता है कितनी मस्ती करता है ये। हाँ, बॉटल खुला रहता है और फिर फेंकते हैं जोर से। हाथ में मोबाइल रहेगा तो मोबाइल फेंकेगा, हाथ में टीवी या एसी का रिमोट दिया वो भी मतलब बटन दबा के देखेगा। अगर कुछ आवाज आ रहा है कहीं से, लाइक एसी का जो आवाज आता है साउंड स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ का, वो अगर नहीं आया तो रिमोट जो फेंकेगा बाबा। बाद में वो जो फिंगर सेंसर होता है ना हमारा, फिंगरप्रिंट सेंसर फोन में, वो ट्राई करेगा। उसके फिंगर से ऑफकोर्स खुलना तो है नहीं क्योंकि हम लोग ने वो सेटअप नहीं किया है। अगर नहीं खुलता है तो जोर से फेंक देगा। थोड़ा थोड़ा थकान फील हो रहा है क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यूस ड्राइव कर रहा हूँ और आज भी सुबह से मैंने 300 किलोमीटर, 350 कितने निकाले सुबह से? हाँ, आज भी सुबह से मैंने 450-500 किलोमीटर निकाल दिए। स्टिल 400 किलोमीटर टू गो। या टोटल टुडेज ड्राइव वाज फॉर 900 किलोमीटर्स। हम लोग ने ढाबा ढूंढने की ट्राई की, हम लोग को कोई ढाबा नहीं मिला, इसलिए हम लोग ने ये डीमार्ट में पिट स्टॉप लिया है। बंडी है ये, और थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, ग्रोसरी वगैरह, और इसके भी डायपर्स खत्म हो रहे हैं तो हम लोग ने सोचा एक स्टॉप अप करके रख ले सेफर साइड, क्योंकि आगे जाके हम लोग को डायपर्स मिला मुश्किल है। थोड़ी रिमोट एरियाज में जाने वाले हम लोग हिमाचल के, ऐसा अभी डिसाइड हुआ है। तो बस अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, ये यहाँ पे इसको खिला देगी खाना आज, और ये अभी पूरा सेटअप कर रही है बबू के लिए। पार्किंग लॉट इज प्रेटी मच एम्प्टी, और यहाँ पे बैठ चुका है। गर्मी तो बहुत है यहाँ पे भी, लेकिन हवा चल रही है तो इतनी फील नहीं हो रही। हाउएवर एज पर गूगल वेदर it is 42 डिग्री सेल्सियस over here, both feels like an actual temperature. So अब ये लोग खाना खा लेंगे। इसने स्टार्ट तो किया ही है, बना दिया ऑलरेडी सारा, और मैं जा रहा हूँ अंदर शॉपिंग करने। तो ये हमारा पूरा सेटअप। एक्चुअली गोप्रो में सुपर मोड चालू है। यहाँ पे एक बंदा इजीली सो सकता है। अगर ये वाला सीट फोल्ड कर दिया तो ये जो बबू का गधा है और वो वहाँ पे रख लिया तो बबू इजीली वहाँ पे सो जाएगा, और एक पर्सन यहाँ पे इजीली सो सकता है, लाइक शेफाली। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ और या तो फिर नाइट में कहीं रुकना पड़ा तो मैं आगे बैठ के नींद निकाल लूँ और शेफाली थोड़ी देर के लिए यहाँ सो जाए, फिर भी पॉसिबल है सब कुछ। गाड़ी में सेटअप फुल किया अपन ने। तीनों जन भी सो सकते हैं क्योंकि हम लोग ने दोनों गद्दे लिए, तो तीनों लोग इजीली अकोमोडेट हो सकते। सो ड्राइव थ्रू से मैकडोनल्ड ले लिया है, फ्राइज ले, मतलब पूरा मील ही पैक करवा लिया बर्गर के साथ। अब सादा बर्गर है, कोई सरप्राइज बर्गर, जो लार्ज मील में 226 रुपीज़ का था। आई मीन एक मील, तो 2 मील के हो गए 450 के आसपास। मुझे समझ में नहीं आता, लाइक 450 और बर्गर का साइज दिखा। हाँ, इट्स वेरी स्मॉल, लाइक इट्स स्मॉलर देन वड़ा पाव, और इसके 450 दे दिए। हाँ, इट इज़ बकवास इन टेस्ट। आई मीन आई हैवंट टेस्टेड येट। इसने खाया है तो इसको पता है, लेकिन सीरियसली यार, अगर अदरवाइज वी डोंट यूजुअली प्रीफर ईटिंग एट मैकडोनल्ड्स और सबवेज और एनीवेयर लाइक दैट। हम लोग लोकल रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और कुछ नहीं मिला तो थाली इज़ बेस्ट थिंग टू ऑर्डर, क्योंकि वो क्या रोटेशन में चलते रहती है तो आपको हमेशा फ्रेश फूड मिलता है। अब 450 रुपये में यहाँ पे 2 पंजाबी थाली विद लच्छा पराठा सब कुछ मिल जाता, लेकिन उसमें 1 घंटा बर्बाद हो जाता। इसके लिए आज एक दिन के लिए पर्टिकुलरली हम लोग ने अवॉइड किया और सोचा छोड़ो, अभी जो है वो हाथ में लेके मैकडोनल्ड्स का लेके निकलते हैं, क्योंकि हम लोग ने बीच में डीमार्ट में बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया अराउंड 1.5 आवर। तो अभी कतरा बता रहा है 12 बजे पहुँचेंगे हम लोग, और कल हम लोग को करनी है यात्रा। तो सोचा जाने दो, फटाफट चलते जाने दो अभी, नहीं तो क्या 2 बजे पहुँचेंगे, कुछ मतलब नहीं है। अब कतरा सीधा खींच लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल लुधियाना आएगा यहाँ से।
तो गाइस कल रात को हम लोग 12 बजे 12:30 को अराउंड पहुंच गए थे कतरा। अभी आज 16 मई, तो यूँ तो दोपहर का टाइम है 12 बजे अभी, लेकिन कल रात को जब हम पहुँचे यहाँ पे सॉलिड थके हुए थे। कल एक ही दिन में हम लोग ने अराउंड 875 किलोमीटर्स कंप्लीट किया था। हम लोग चले थे जयपुर से, और जयपुर से चलते चलते हम लोग पहुँचे नरनौल। 2.5 घंटे लगे वहाँ पहुँचने को, और वहाँ से हम लोग ने लिया नरनौल अम्बाला ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। ओके, सो नरनौल अम्बाला ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे से हम लोग को सिर्फ 2.5 घंटे लगे 300 किलोमीटर कवर करने के लिए। बहुत औसम है। हम लोग पहुंच गए हरियाणा, और वहाँ से आगे आगे चलते 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 कतरा भी पहुंच गए। टोटल 875 किलोमीटर्स, और कल एक ही दिन में हम लोग ने आधा राजस्थान, पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब पार कर लिया। तो बहुत लंबी ड्राइव थी। सॉलिड थका हुआ था मैं भी, और दोनों भी थक गए थे। हम लोग आके सीधा सो गए। खाना भी नहीं खाया कल रात को, जो मैकडोनल्ड्स में खाया था वही लास्ट था। तो ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी यात्रा करने। पैदल ही जाएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए ट्राई किया हम लोग ने। मैं काउंटर पे गया था, कहीं पे भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लोग 10-10 घंटे से खड़े हैं काउंटर पे, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी माता के दर्शन करने पैदल। बाणगंगा से जाएंगे या तो ताराकोट से जाएंगे, वो तो फिक्स नहीं है, देखते हैं कहाँ से जाएंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और कभी भी किसी को मुंबई से कतरा या मुंबई से कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की कोई रोड ट्रिप करनी होगी, तो मुझे लग रहा है कि मैंने सारी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है, इस ब्लॉग में दी है, जो आपके काम आ सकती है, आपके किसी फ्रेंड्स के काम आ सकती है। तो शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।